اور اب خبریں تفصیل سے۔ بانڈپورہ کے چھٹے بانڈے علاقے میں آج NIA نے کارروائیاں انجام دی۔ دہشت گردانہ امور کی جانچ کرنے والی قومی ایجنسی نے جموں کشمیر پولیس کے ہمراہ یہاں مزمل بٹ اور وقار لون نامی 2 افراد کے گھروں پر چھاپے مارے۔ ذرائع کے مطابق اس کارروائی کے دوران مزمل بٹ اور ان کے والد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وقار لون ملیٹنسی سے جڑے ایک معاملے میں پہلے ہی سے گرفتار ہے۔ سری نگر میں نکالے جانے والے تاریخی جلوس اعزاء پر لگی پابندی کو 30 سال بعد ہٹا دیا گیا، لیکن یہ پابندی ہٹنے کے بعد سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے صدر مولانا عمران رضا انصاری نے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ جلوس اعزاء آبی گزر سے علی پار جڑیبل تک نکالنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن نے بھی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ جن راستوں سے یہ تاریخی جلوس برآمد ہوتا تھا ان تمام راستوں پر لگی پابندی ہٹنی چاہیے۔ انہوں نے جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ اور میلاد جلوس پر لگی پابندی بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ انہوں نے یہ ایکنالج کیا کہ یہ بین تھا اور انہوں نے یہ ایکنالج کیا کہ ہم اس بین کو ہٹا رہے ہیں، تو اسی لیے میں نے اس چیز کا پوری طرح سے ویلکم کیا، کیونکہ ہم 31 سال سے ہم محروم ہیں کہ ہم ایک مرکزی جلوس نکل پائے، اور اس میں انہوں نے جو آبی گزر سے لال چوک کی جو بات کی تھی، ہم نے اسی دن ان کو کہا کہ یہ لال چوک سے یہ آبی گزر سے پورا زریبل تک جاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی کلرکل ایرر ہو یا باقی چیزیں۔ جو باقی ہمارے دوست و احباب ہیں، اقارب ہیں، نہ صرف شیعہ برادری میں، ہمارے اہل سنت برادری میں بھی، ان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر پابندی ہٹائی گئی ہے اچھی بات ہے، مگر اس کو کٹوتی کیوں کی گئی ہے؟ جس روٹ سے یہ چلتا ہے، حب کدل سے، گاؤ کدل سے، صفا کدل سے، مختلف روٹوں سے علی پارک میں یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، تو اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جناب میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق صاحب جو رول اس میں رہا ہے وہ اپنا رول نبھائے۔ مفتی اعظم صاحب ان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں، تو اس جلوس کو امن امان برقرار رکھنے میں ہم سب مل کر کام کریں گے۔ جامع مسجد کے محراب ممبر پر بھی پابندی ہٹنی چاہیے، میلاد کے جلوس پر پابندی ہٹنی چاہیے۔ جموں کشمیر میں 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد امن و امان کی مجموعی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پتھر بازی کے واقعات میں نمایاں کمی دکھائی دے رہی ہے۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران سیکیورٹی کے تعلق سے مزید کیا تبدیلی آئی ہے؟ پیش ہے منوج کول کی یہ رپورٹ۔ دفعہ 370 کی منسوخی سے پہلے وادی کشمیر میں پتھراؤ کے واقعات معمول بن گئے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد ہو یا انکاؤنٹر کے مقامات کے قریب اکثر گمراہ نوجوانوں کو پتھر مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہری زخمی ہوتے تھے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں نے ان ملک دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی، جس کے نتیجے میں پچھلے 2 سالوں کے دوران ان واقعات میں کافی کمی آئی۔ وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں جنوری سے جولائی کے دوران پتھر بازی کے 618 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ 2020 کے پہلے 7 ماہ میں یہ تعداد کم ہو کر 222 ہو گئی۔ وزارت داخلہ کے مطابق جنوری سے جولائی 2021 تک پتھراؤ کے صرف 64 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ جموں کشمیر کے سابق DGP SP وید کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے تشدد کو ہوا دی ان کے خلاف کارروائی سے اچھے نتائج سامنے آئے۔ کافی وائلنس رہتی تھی، جہاں جاؤ پتھراؤ ہو رہا ہے، گاڑیاں ٹوٹ رہی، ٹورسٹ کو حملہ ہو رہا ہے اور فورسز پہ اٹیک ہو رہا ہے، تو ایک بڑا ٹینس سا ماحول رہتا تھا۔ 370 کے ایبوریگیشن کے بعد یہ فیکٹ ہے، کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اسٹون پیلٹنگ آلموسٹ نیل ہو گئی ہے، تو اٹ از ویری پازیٹیو تھنگ۔ حریت اور انہوں نے ایک ایٹماسفیئر بنایا تھا، بند کال دے رہے ہیں، لڑکوں کو ٹیررزم میں جھونک رہے ہیں،
تو وہ چیزیں NIA ریڈز کے بعد رکی ہیں. حریت آلموسٹ ارریلیونٹ ہوئی ہے. اس سے جو اوور آل ایکو سسٹم تھا ٹیررزم کریٹ کرنے کا، اس میں فرق پڑا. دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پتھر بازی کے واقعات میں کمی کے علاوہ ان لوگوں کی ذہنیت میں مثبت تبدیلی آئی ہے جو علیحدگی پسند نظریات کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے. دفاعی امور کے ماہر کیپٹن انل گورڈ نے کہا کہ ان میں سے بہت سے علیحدگی پسند رہنما جو پہلے کی حکومتوں کی سیکیورٹی کا مزہ لے رہے تھے اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. گورنمنٹ نے ایک بہت سخت قدم اٹھا لیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو بھی بچہ پتھر بازی میں تھا انوالوڈ، اس کے جس کے کیس بنے تھے، ان کی جو ہے ان کو پہلی بات گورنمنٹ جاب نہیں دی جائے گی. دوسرا، جو بھی گورنمنٹ جاب دینی ہے کسی کو، اس کی پہلے CID ویریفیکیشن ہوگی. اور تیسرا، جو یہ تھے ان کو یہ پچھلی گورنمنٹ ہے انہیں بیک ڈور انٹری کرا کے ان کو گورنمنٹ کی نوکریاں دی ہوئی تھی. ہندوستان گورنمنٹ کے پیسے لیتے تھے ٹیکس پیئر کے منی سے اور بات کرتے تھے اینٹی نیشنل. ان کو سب کو نکالنا شروع کر دیا. یہ اوور گراؤنڈ اور انڈر گراؤنڈ ورکر جو ہیں ان کے خلاف جو مہم چلائی ہے اب گورنمنٹ نے، میں کہتا ہوں وہ سب سے بڑا ایک کامیاب قدم ہے آرٹیکل 370 کا جانے کا. جموں کشمیر کے سابق DGP SP وید نے کہا کہ پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیاں ملیٹنٹوں کو ہلاک کر کے اپنا کام کر رہی ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت کو ملیٹنٹ تنظیموں سے وابستہ OGW کے جھوٹے پروپیگنڈے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو نوجوانوں کو ملیٹنسی کی جانب راغب کرنے کے لیے دفعہ 370 کی منسوخی کا استعمال کر سکتے ہیں. ان سب کی انوالومنٹ ہونی چاہیے، یہ سب کا کنسرن ہونا چاہیے کہ لڑکے ریڈیکلائز نہ ہوں. یہ ہمارے لڑکے ہیں، یہ سب میں بھاو آنا چاہیے. باقی ساری گورنمنٹ کے ونگز یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ صرف پولیس کی ذمہ داری ہے. جبکہ سب کو، میں سمجھتا ہوں سب کی ذمہ داری، سب کو مل کر انشور کرنا چاہیے کہ یہ بچے ٹیررزم میں نہ جائیں، یہ ریڈیکلائز نہ ہوں. یہ الٹیمیٹلی ہمارے سماج کو خراب کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی کو تباہ کرتے ہیں، اور پاکستان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ اگر حکومت اسی جذبے کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھے تو کشمیر میں یقیناً بہتر بدلاؤ آئے گا. نیوز 18 اردو کے لیے جموں سے منوج کول کی رپورٹ. اس بیچ 370 کی منسوخی کے 2 سال مکمل ہونے پر پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن نے بیان جاری کیا ہے. گپکار الائنس نے کہا کہ 5 اگست کو ہندوستان کے آئین پر بے نظیر حملہ کیا گیا. دفعہ 370 کو کالعدم قرار دیا گیا جس سے یونین آف انڈیا سے جموں کشمیر کے رشتے کو نقصان پہنچا. مرکزی حکومت نے تمام حدیں پار کر کے جموں کشمیر کے دستور کو ڈھا دیا ہے. عوام کی رضامندی کی پرواہ کیے بنا تاریخی ریاست کے حصے کر دیے گئے. مرکز نے جموں کشمیر اسمبلی کے 3 مارچ 2014 کے ریزولوشن کو نظر انداز کر دیا. اس قرارداد میں جموں کشمیر کی سیکولر حیثیت اور سالمیت کو برقرار رکھنے پر زور دیا گیا تھا. دفعہ 35A کی منسوخی سے مقامی لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں. گپکار الائنس کے مطابق BJP کا نیا کشمیر کا نعرہ دھوکہ کے مترادف ہے اور ایک بھدے مذاق کے سوا کچھ نہیں ہے. گپکار الائنس کے مطابق توقع کے برعکس حکومت اپنے غلط فیصلوں کا ادراک نہیں کرنا چاہتی ہے. دفعہ 370 اور 35A کے خاتمے کو لے کر اب بھی مختلف حلقوں میں اختلاف رائے ہے. وہیں یہ بات عیاں ہے کہ 370 کی منسوخی کے بعد پنچایت راج مزید مستحکم ہے. پنچایت راج اداروں کے خود مختار ہونے کے بعد اب صحیح معنوں میں گاؤں دیہات کی تصویر بدلنے لگی ہے. پیش ہے نیوز 18 اردو کی یہ خاص پیشکش. دسمبر 2018 میں جموں کشمیر کے پنچایت راج کے لیے ایک نیا سورج اس وقت طلوع ہوا جب یہاں کے 33,592 پنچ اور 4,290 سرپنچ حلقوں کے لیے انتخابات منعقد ہوئے، جن میں 74% ریکارڈ توڑ ووٹنگ درج ہوئی. لیکن جموں کشمیر میں پنچایتوں کو بااختیار بنانا پھر بھی ایک مسئلہ تھا، جس کی اہمیت کے پیش نظر سرکار نے اگست 2019 میں ریاست جموں کشمیر میں دفعہ 370 اور 35A کے خاتمے کے ساتھ ہی پنچایتوں کو بااختیار بنانے کی راہیں ہموار کی. نہ صرف پنچایت راج ایکٹ کی 73ویں ترمیم کے نفاذ کو تسلیم کرنے کی بات چلی، بلکہ دیگر اہم ترامیم پاس کر کے جموں کشمیر میں پنچایتوں کو پوری طرح سے بااختیار بنا دیا گیا، جس کے بعد جموں کشمیر کے گاؤں دیہات میں تعمیر و ترقی نے دستک دی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. جتنے بھی گاؤں میں، جتنے بھی JNK میں جتنے بھی پنچایت ہے، جتنے بھی حلقے ہیں، آج ہر ایک حلقے میں
ईमानदारी से काम हो रहा है। 70 साल से यहाँ कुछ काम नहीं हुए, जब से 370 यहाँ ख़त्म हुआ तब से बहुत सारे फ़ायदे J&K को मिला। बेरोज़गार नौजवान आज काम कर रहे हैं अपने अपने हलके में, अपने अपने गाँव में, लोग खुश है, पत्थरबाजी ख़त्म हो गई। जो सेंटर से पैसे आ रहे हैं वो डायरेक्ट ही सरपंच पंच के अकाउंट में आते हैं और वो जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके हाथ में पैसे आते हैं, वो काम करते हैं, चाहे ड्रेनें हो या सड़कें हो या और भी कोई काम हो, उससे वो काम कर सकते हैं। आम आदमी बहुत खुश है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 के खात्मे के बाद पंचायती राज को तक़वियत देना यकीनी तौर पर सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था। सरकार ने पंचायतों को बराह रास्त तौर पर 21 इंतजामी उमूर में मदाखलत का अहल बना दिया, जबकि पंचायतों को बराह रास्त तरीक़ेकार से 1500 करोड़ रुपए भी फराहम किए गए ताकि ये रकम पंचायती हलकों में सिर्फ तामीर और तरक्की के लिए सर्फ की जा सके। नए सिर पंचायत बने बस अत मजन काम कर हायक हायक योतान चलान तोतान दपान नसा गाँव फायदे वात कायम मान लगन खखर मे गई सूरत गई वन मतलब गई कम कह बन पे 10 वही पोज फोन गई खर्च मान पंचायत में नल खड़ी नल कहीं। पंचायतों के जरिए 3 टायर निज़ाम के तहत अब इन इलाकों का नक्शा बदलने की कोशिश की जा रही है, जो अरसे दराज से पसमानदगी और मुफलिसी की दास्तान बयान करते थे और जहां पर पक्की सड़कें और गली कूचे गोया एक ख्वाब की मानिंद थे। वाटरशेड मैनेजमेंट और MG नरेगा जैसी स्कीमों का कंट्रोल बराह रास्त तौर पर पंचायतों के हाथ में आने के बाद न सिर्फ तरक्की की राह हमवार हुई बल्कि आम लोगों के लिए रोजगार के वसाइल भी पैदा हुए, जबकि बैक टू विलेज जैसे प्रोग्रामों के खातिर ख्वाह नतायज भी बरामद हुए। आजकल डायरेक्ट फंड्स आते हैं पंचायत के पास और पंचायत जो काम विलेज लेवल पे जो भी काम होता है पंचायत वो काम खुद कर सकता है। लेकिन इससे पहले अगर हम स्टेट की बात करें तो उस टाइम क्या होता है कि अगर ट्रांसफार्मर लगाना होता है किसी विलेज में तो MLA के पास 6-6 महीने 5-5 महीने जूते और चप्पल घिस जाते थे, फिर 6 महीने के बाद फिर भी निराशा होके हम घर पहुंच जाते थे वापस। ग्राउंड लेवल पे जो काम होना था बहुत ढंग से हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है वो हम बहुत अच्छे तरीके से खर्च कर रहे हैं। प्ले फील्ड बना रहे हैं, ड्रेनेज बना रहे हैं, जो पार्क्स बना रहे हैं हम। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें कोऑपरेट कर रही है, बहुत पैसा दे रही है गाँव की तरक्की के लिए, तो हम गाँव की तरक्की बहुत अच्छी से कर रहे हैं। लोअर पंचायती इंतखाबात के बाद जहां आम लोगों के हाथ में ताकत आई, वहीं सरकार ने 2019 और 2020 में BBDC और DDC इंतखाबात मुनक्किद करके एक और संगे मील तय किया, जिसके बाद अब गांव के लोग ही अपने गांव के हक में फैसला लेने के मजाज बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। राहुल गांधी 9 अगस्त को श्रीनगर का दौरा करेंगे। रियासती सदर गुलाम अहमद मीर के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी वहां पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से भी मिल सकते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो 8 अगस्त को जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन का इरादा रखते हैं, ताहम इस पर अभी मुहर नहीं लगाई गई। जम्मू में भी पार्टी रहनुमाओं और दीगर लोगों से मिलने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। श्रीनगर में खीर भवानी और हजरत बल के दौरे के मंसूबे पर भी बनाए जा रहे हैं, ताहम ये भी अभी फाइनल होना बाकी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियां चलाने वालों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। शाहराह की तजदीद और मरम्मत के लिए मखसूस किए जाने वाले दिनों में मकामी लोगों और मरीजों को मुश्किलों का सामना रहता है। गुज़श्ता साल से लगातार हफ्ते में एक दिन शाहराह बंद रखने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तामीराती कंपनियों की जानिब से तजदीद और मरम्मत के नाम पर हो रहे कामों से लोग खफा हैं। मुलाजिमीन, आम मुसाफिरों और ख़ासकर मरीजों को कई घंटों तक रोक दिया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मुतल्लिक़ा हुकाम को कई बार दरपेश परेशानियों से आगाह कर दिया गया, लेकिन पाबंदियों का सिलसिला नहीं तोड़ा गया। VIP मूवमेंट के लिए शाहराह को हर वक्त खुला रखा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो वक्तन फ़वक्तन लोगों के
मसले उजागर करते हैं। तो ये जो जिम्मेवारी है ये मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, क्योंकि इनको पता है ये नेशनल हाईवे है, रामबन बनहाल का जो एरिया है इसको तो पूरा ही इन्होंने बर्बाद करके रखा है। अगर यहाँ पे कोई बीमार है या कोई ऐसी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उस बेचारे को तो रास्ते में ही जान चले जाएगी। एम्बुलेंस यहाँ पे अभी आपके सामने आ गई तो वो भी रुकी हुई है, उसमें पेशेंट बैठा हुआ है। परेशान है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे से यहाँ रुके हैं, कोई इसका कोई। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी को 2 साल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने दफ़ा 370 को तो ख़त्म कर दिया, मगर कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी अभी तक नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से अब उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। पेश दिल्ली से खुर्रम शहजाद की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता 30 सालों से राजेंद्र कौल प्रेमी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कश्मीर और अपने वतन सूफशाली अनंतनाग के छूटने का दर्द कभी नहीं भुला सके। सियासी हालात के पेश नज़र उम्मीदें बढ़ती और टूटती रहीं। 15 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर वापसी की उम्मीद जागी थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। राजेंद्र कौल प्रेमी का कहना है कि अब तक कुछ भी नहीं बदला, बस इसी उम्मीद पर जिए जाते हैं कि हम अपने वतन लौट सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऑन द ग्राउंड स्थिति में उतनी फ़र्क आ गई है कि एक माहौल सा बने जहाँ पे कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है या और भी कुछ लोग हैं जो विस्थापित हो गए हैं, उनके वापस जाने की कोई ऐसी अभी सिचुएशन हुई है। हाँ, ये बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर में, स्टोन पेल्टिंग में और बाकी चीज़ों में, दहशतगर्दी में थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है। 32 साल हुए, कोई मुझे ये बताए कि इन 32 सालों में राष्ट्रीय सरकार ने और जम्मू कश्मीर सरकार ने कितनी पहल की है, उनको वापस जाने के लिए कितना सरकार ने इसके लिए पहल की। 30 साल गुजर गए, लेकिन राजेंद्र कौल प्रेमी अब तक अपने गांव छोड़ने का दर्द नहीं भूल पाए हैं। इन्हें अब भी याद है कि कैसे इनके वालिद सर्वानंद कौल प्रेमी और भाई वीरेंद्र कौल प्रेमी को अप्रैल 1990 में कत्ल किया गया था। कमीशन इंक्वायरी का फैसला समेत सब कुछ हुआ, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। 2018 की अक्टूबर में एक मीटिंग हो गई, एडवाइज़र साहब ने बुलाई वहाँ पे श्रीनगर में, सेक्रेटरीट में, मैं भी उसमें शामिल रहा। मीटिंगें हुई, डिसीजन भी हो गए, लेकिन गुफ्तम शनीदम बर्खास्तम, फाइलों में वो कागज़ रह गए, लेकिन कुछ ट्रांसलेशन ऑफ एक्शन नहीं हुआ, न ह्यूमन राइट्स कमीशन की मीटिंग्स। राजेंद्र अकेले नहीं है, बल्कि इनके जैसे सैकड़ों खानदान दिल्ली में रह रहे हैं। कश्मीरी समिति दिल्ली के नायब सदर संजय कौल और सेक्रेटरी अशोक की भी यही कहानी है। सरकार को हमसे बात नहीं कर रही है, सरकार खुद जो उनका दिल चाहता है वही कर रही है। कश्मीरी पंडितों के लीडरों से नहीं वो बात कर रही है, जो बेसिकली जो लोग जाना भी चाहते हैं, जो वो उनकी जो डिमांडें हैं वो नहीं पूरी हो रही हैं। सबसे पहले हमारी डिमांड है कि हमें जेनोसाइड डिसाइड करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी हमारी डिमांड है कि हम एक जगह रहना चाहते हैं, क्योंकि हम गड़ी गड़ी भागने के लिए नहीं हैं, बेर बकरियां नहीं हैं, हमें वो भगा दें। फिर अभी कोई उम्मीद तो है नहीं, अभी इतना टाइम हो गया, 370 भी हट गया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, वहाँ से कुछ नहीं है। आज एक मीडिया पे, सोशल मीडिया पर केंद्र मंत्री लेखक उसने एक बयान दिया था कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ से आए, जैसे बिहार से कोरोना में आए लोग यहाँ आए वापस चले, उसने स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसे ये भी जाएंगे, गवर्नमेंट की हेल्प करेगी, जैसे ऐसे हमने थोड़ी रोका है, आप जाओ अपनी मर्जी जाओ आप जाओ। लेकिन हमारे वहाँ तो हमारी कहानी तो डिफरेंट है, उसको पता नहीं कश्मीरी पंडितों की कहानी क्या है, वे कैसे निकाले गए वहाँ से मिलिटेंट के द्वारा, कैसे क्या हालात है उनका वो स्टेटमेंट उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसे सोशल मीडिया पे, ये गलत है। उनके मतलब कि इनका कोई पॉलिसी नहीं है हमारे लिए, कोई नहीं, वरना वैसे वो स्टेटमेंट देते नहीं। वो कश्मीर हो या फिर दिल्ली, हुकूमतें आती जाती रही हैं, लीडर बदलते रहे हैं, फैसले होते रहे हैं, लेकिन आज भी सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कश्मीरी पंडित बेघर के तौर पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं और आज तक इनकी वतन वापसी नहीं हो सकी है। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। लगभग 4 महीने पहले जम्मू कश्मीर एलजी ने तमाम सरकारी दफ्तरों पर कौमी परचम लहराने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद कठुआ में जिला इंतजामिया ने सभी सरकारी ऑफिसों पर तिरंगे लगा दिए थे,
लेकिन चंद महीने के बाद ही सरकारी दफ्तरों पर कौमी परचमों की तौहीन का सिलसिला शुरू हो गया। कठुआ के इन दफ्तरों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कौमी परचम की तौहीन की जा रही है। इस मामले में खामोश तमाशाई बने रहने का जिला इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। लोगों और समाजी कारकुनों ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लाखों कुर्बानियों के बाद ये तिरंगा हमें मिला है। जितने भी फ्लैग्स हैं उसमें तकरीबन बहुत से जो फ्लैग हैं वो ख़राब हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इंतज़ामिया का फ़र्ज बनता है और सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी हैं जिनके सर के ऊपर नेशनल फ्लैग रखा गया है, उनको इज़्ज़त करनी चाहिए और उसके ऊपर ध्यान रहना चाहिए। अगर वो इसका ध्यान नहीं रखते हैं, वो ख़राब हो जाता है या किसी तरीके से भी उसकी नेशनल फ्लैग की जो बेरुमती होती है तो वो राष्ट्र के लिए भी कोई गर्व की बात नहीं है और उनकी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और उनको सही और मान सम्मान जो है वो नेशनल फ्लैग को मिलना चाहिए। दुख की बात भी है कि आप मेरे पीछे एक तिरंगा लहराता हुआ देख रहे हैं। तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए मौके पे तिरंगा लगाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद तिरंगे को देखता तक नहीं। एक तो झुका हुआ तिरंगा है और दूसरा फटा और कटा हुआ है। बड़े दुख की बात है। और है किस जगह पे? बिल्कुल जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने, गेट के सामने। अगर यहाँ पे ये हालत है तो बाकी बिल्डिंग की, सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग हैं जहाँ पे मैंने खुद देखे हैं, वहाँ मैले कुचले और फटे हुए तिरंगे लहराए जा रहे हैं। भाई कुर्बानियों का प्रतीक है। ऐसे ये आज़ादी नहीं मिली थी, स्वतंत्र देश हुआ था, लेकिन आज उस आज़ादी की कीमत आप ऐसे इस तरह अपमानित करोगे। राज्यसभा के साबिक मेंबर नज़ीर अहमद लावे ने बीजेपी के साथ शमूलियत की खबर को मुस्तरद कर दिया। लावे कहते हैं कि मुफ्ती सईद के इंतकाल के बाद पीडीपी का शिराजा बिखर गया। उन्होंने कह दिया कि वो कभी पार्टी में वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने इशारा दिया कि वो जल्द ही किसी पार्टी से वाबस्ता हो जाएंगे। हमारे सेंटर में, हमारे मुल्क में सरकार चला रही है। अगर मैं कल फिर एमपी बनूंगा तो मुझे फिर उनके पास ही जाना है, लेकिन मुझे कभी नहीं सोचा है कि मैं बीजेपी जाऊं और मेरा जहन भी नहीं है। या ऐसे नहीं जाना पड़ता है किसी पार्टी में, अपने घर वालों से पहले, फिर अपने हमदर्दों से, फिर वर्करों से, फिर जो अच्छे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ये फ्यूचर हमारा कहाँ है, उनके साथ बात करें। किसी ने मुझे नहीं बोला कभी आज तक कि आप बीजेपी में जाइए। पीडीपी से मैं निकल गया। अब तो पीडीपी के साथ नहीं हूँ मैं, अब तो बहुत हो चुका है। अब मैं पीडीपी बात ही नहीं करूँगा। जो करना है उनको वो कर देंगे। मैं न उनके ख़िलाफ़ हूँ न मैं उनके फेवर में हूँ। वो भी पॉलिटिकल पार्टी है और मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाऊँगा और अब पॉलिटिकली मैं यहाँ के गरीब आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। मरकज़ी हुकूमत के ईट राइट प्रोग्राम को लागू करने के हवाले से श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। एडीसी श्रीनगर हनीफ बाल्खी ने इस मीटिंग की सरबराही की। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और आईसीडीएस के नुमाइंदे शरीक रहे। कश्मीर में गैर मयारी अशिया खुर्दनी बेचने वालों पर रोक लगाने के उमूर को कतई दे दी गई। लोगों को साफ और सेहत बख्श ग़िज़ा से मुताल्लिक़ जानकारी देने के प्रोग्राम भी तश्कील दिए गए हैं। अफसरान ने आम शहरियों पर जोर दिया कि वो भी जंक फूड्स का रुझान ख़त्म कराने में अपनी तरफ से ताउन करें। मेन मुद्दा मकसद ये है कि डाउन द लाइन एक मैसेज चली जाए लोगों तक, एक कंज्यूमर तक, कि क्या उनको खाना है, क्या नहीं खाना है। इस प्रोग्राम के तहत हमें दो किस्म की एक्टिविटीज़ करनी है। एक हो गया जो हम रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, जो हम कोर्स मेजर्स लेते हैं, जिसमें हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मार्केट में जाते हैं, वहाँ से सैंपल्स उठाते हैं, या वहाँ उनको जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको एजुकेशन भी देते हैं साथ साथ में। मगर हमें इस प्रोग्राम के तहत एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देना है। सिक्किम्स का उन्होंने जो यहाँ पर एक सर्वे की, उसमें उन्होंने ये पाया कि आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन 1 इज़ ओबेस और ओवरवेट। वो क्यों ओबेस या ओवरवेट है? इसलिए है कि वो जो बच्चे हमारे हैं वो इस वक्त जो है वो जंक फूड खाते हैं। जंक फूड हम किसको कहते हैं? उसमें साल्ट, शुगर और जो फैट होता है वो ज़्यादा होता है। वाइल जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, माइक्रो या मैक्रो, वो उसमें बहुत कम होते हैं। तो हमें ये भी एक स्कूल्स में हमें जाना है। तो हमारे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग दे देंगे इस प्रोग्राम के तहत। तो सबसे गुजारिश रहेगी, पूरी सोसाइटी से गुजारिश रहेगी, आप बच्चों को सेफ़ खाना दे दीजिए, लोगों को सेफ़ खाना खिलाए, होटल वाले सेफ़ खाएं। सब लोग ये जुर्माने से मीट वाले जो हैं, जो जिनको हम पूज बरादरी चिकन बरादरी खुदमुत माज दिन, साफ माज दिन, अल्लाह ताला करे बरकत। जो साफ चीज़ें आप लोगों को दिलेंगी तो इनाम देने के लिए अल्लाह ताला खुद मौजूद हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि पूरा साफ़ शफाफ सिस्टम एक हम यहाँ बना लें। ये डिपार्टमेंट बहुत मेहनत करता है कि माँ बाप ही अपनी फैमिली की तरफ पूरा ध्यान दे दे, तो जब सेहत ठीक रहेगी तो माशरा ठीक।
انجمن اوقاف نے کہا ہے کہ جامع مسجد سری نگر میں صفائی کے کام جاری ہیں۔ اوقاف کے مطابق آئندہ جمعے کو یہاں بجماعت نماز ادا کی جائے گی، لیکن مسلیان کو کووڈ ضابطوں کی سختی سے پابندی کرنی پڑے گی۔ طبی ماہرین کے مشوروں کے مطابق جمعے کے علاوہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے بھی کووڈ SOPs لاگو رہیں گے اور سبھی کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑے گی۔ یاد رہے کہ وبائی صورتحال کے چلتے جامع مسجد سری نگر کو نماز جمعہ اور عبادات کے لیے طویل عرصے تک بند رکھا گیا۔ عظیم الشان مسجد کی صفائی میں اوقاف کے ملازمین اور عملے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر کے زیر اہتمام یہ کام انجام دیے گئے۔ ادب کے میدان میں نامور شاعرہ پدما سچدیو کو کھو دیا ہے، جس نے ڈوگری ادب کے فروغ میں گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ ان کے انقلابی اور رومانی شاعری پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی کاوشوں نے بین الاقوامی سطح پر ڈوگری زبان کو مقبول بنایا۔ پدما سچدیو 1940 میں سنسکرت کے اسکالر پروفیسر جے دیو بوڈو کے خاندان میں پیدا ہوئیں۔ بچپن سے ہی ان کا رجحان شاعری اور ادب پر تھا۔ انہیں پدم شری، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، کلچرل اکیڈمی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے سمیت انگنت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ ناول اور شاعری سے متعلق درجنوں کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ ان کے انتقال پر بڑے پیمانے پر سوگ منایا جا رہا ہے۔ کئی سماجی ثقافتی تنظیموں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور تعزیت پیش کی ہے۔ زوردار آواز جو ڈوگری بھاشا کے لیے جگہ جگہ گونجتی تھی وہ آج بند ہو گئی۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھد سماچار ہے۔ اس لاس کو، اس کمی کو کسی بھی طرح سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ پدما جی ہی تھی جنہوں نے سب سے پہلے ڈوگری بھاشا کے جتنے بھی بڑے دگج لیکھک تھے ان کے بارے میں لکھا، دھرم جگ میں چھپا اور ان کی باہر پہچان ہوئی۔ وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ڈوگری بولنی چاہیے۔ جو 8 شیڈول میں جو ڈوگری زبان کو لایا گیا، اس مومنٹ میں، اس تحریک میں انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا، اور وہ اپنی شاعری کے حوالے سے، اپنی لکھت کے حوالے سے، اور جو انہوں نے ڈوگروں کے لیے، ڈوگری زبان کے لیے اور ڈوگری ادب کے لیے جتنی خدمات دی ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ان کے نہ رہنے سے پورا ساہتیہ جگت سکتے میں ہے، اور وشیش کر ڈوگری ساہتیہ کو اپورنی کھتی پہنچی ہے جس کی بھرپائی کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ میری کویتا، میرے گیت سے شروع ہوا یہ سفر کتنا کچھ دے کر ڈوگری ساہتیہ کو سمردھ کر گیا ہے، اس بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم پڑے گا۔ ان کا جانا صرف ڈوگری ساہتیہ کے لیے ہی ایک اپورنی کھتی نہیں ہے، ان کا جانا پورے بھارتی ساہتیہ کے لیے، اور میں کہوں کہ پورے وشو کے ساہتیہ کے لیے ایک ایسا نقصان ہے جس کی بھرپائی کرنا بہت ہی مشکل ہے، جس کی بھرپائی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بہت بہترین ساہتیہکار ہونے کے ساتھ ساتھ پدما جی، جنہیں میں بوا جی کہہ کے بلاتا تھا، ایک بہت بہترین انسان تھی۔ تو انہوں نے اپنا سارا جیون ناری ومرش اور ناری سشکتیکرن کو ارپت کیا۔ ان کی چاہے کویتائیں ہوں یا گدیہ ہو، پدیہ ہو، ساری وداؤں میں انہوں نے ہمیشہ ناری کے پکش کو لے کے ہی ابھارا ہے، اور ایسا ایک ہستاکشر تھیں جنہوں نے ڈوگری ساہتیہ کو بڑا سمردھ کیا ہے۔ پیسٹیسائیڈ ایسوسی ایشن نے شوپیاں میں دہلی کی نقلی جراثیم کش ادویات تیار کرنے والی کمپنی کے خلاف احتجاج کیا اور میمورنڈم پیش کیا۔ ایسوسی ایشن کے ممبروں نے حکومت سے ضمن میں کارروائی کرنے کی اپیل کی۔ پیسٹیسائیڈ ایسوسی ایشن شوپیاں کے صدر نے حکومت سے درخواست کی کہ اس معاملے میں حکومت یہ تحقیق کرے کہ کشمیر میں جعلی فیکٹریوں کا کوئی نیٹ ورک تو نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے نہیں نکلے ہیں، بلکہ ہم اس انڈسٹری کو بچانے کے خاطر نکلے ہیں۔ دلی میں بنایا گیا اس فیکٹری کو سرو مہر کیا ہے، لیکن ہم اتنا ہی نہیں جانتے ہیں کہ اس کو سرو مہر کیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں ان کے اکاؤنٹس جتنے بھی ہیں وہ ضبط ہو جائے، اور جو کلپریٹس اس میں آئیں گی
ان کو निशानदेही करे और उनको सरकार सख्त सज़ा दी जाए। उस इंडस्ट्री साल से बर्बादी के दहाने पे पहुंची हुई है और आज के डेट में इस साल भी हमने बहुत कोशिश की कि इस इंडस्ट्री को बचाने में कोई दकीका फरोगुजाश नहीं होगा और इंशाअल्लाह हम बहुत हद तक। शोपियां के दूरअफ्तादा इलाकों से भी सितारे उभर कर सामने आ रहे हैं। आदिल फयाज भी उन्हीं में से एक हैं। औसत तर्ज जिंदगी गुजारने वाले खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले आदिल फयाज को MSc केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल मिला है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें सालाना कन्वोकेशन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों आदिल फयाज ने गोल्ड मेडल और बावकार अवार्ड हासिल किया। इम्तियाजी डिग्री मिलने पर फयाज के रिश्तेदार और पड़ोसी भी खुशी मना रहे हैं। उनके इस कामयाबी से पूरे जिले के तालिबे इल्मों का हौसला बढ़ा है। इलाके से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पर उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, उतने ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं है हम, तो प्रेसिडेंट के हाथ से, प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में ये ऑनर मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ज़्यादा खुशी हुई मुझे जब मुझे गोल्ड मेडल मिला है, क्योंकि इन चीज़ों से इंसान को एक इंस्पिरेशन मिलती है कि दैट आई हैव सम पोटेंशियल, दैट आई कैन डू सम बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ। तो डेफिनेटली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि इससे मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक बूस्ट हुआ है। जो भी मैंने एफर्ट्स दिए हैं वो कहीं ना कहीं आज उनकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। इज टू बिकम अ गुड रिसर्चर एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट समहाउ टू माय सोसाइटी, बिकॉज व्हेन यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन वन और द अदर वे देन यू विल बी सक्सेसफुल। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा को मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीम के मुकम्मल फ़ायदे हासिल हुए हैं। MHRD की जानिब से शुरू करदा टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कॉलेजों को 12 करोड़ रुपए की फंडिंग के लिए मुंतखब किया गया। यूनिवर्सिटी इन्हीं में से एक है। इस प्रोजेक्ट के तहत BGSB यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। तलबा ने मरकज़ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि फंडिंग से उन्हें फ़ायदा हुआ है। बात है कि टेक्यूब के अंदर इस यूनिवर्सिटी को एक दर्जा मिला और टेक्यूब के अंदर इसको टेक्यूब थर्ड में इस यूनिवर्सिटी को एक अच्छी खासी फंडिंग मिली और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने उस फंडिंग को यूटिलाइज़ किया अच्छे से और सारे जो है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, सर्वे को उठा के देख लें, मॉडर्न से मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हैं, फूड में देख लें, स्ट्रक्चर में देख लें, और जो है कि अच्छे तरीके से इन्होंने टेक्यूब थर्ड का जो बेनिफिट उठाया। BGSPU का जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उसको सिलेक्ट किया गया था और उसे फंडिंग की गई और उसी फंडिंग को हम देखते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसने बड़े अच्छे से यूटिलाइज करके यहाँ की लैब्स को बड़ा अच्छा ग्रो किया है। हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, अब यहाँ पर लैब्स बहुत अच्छी हैं, आपने भी देखा होगा लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे से यहाँ डेवलप हुआ है। ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर बहुत अच्छे से इसको चलाया। 2 साल से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और इस ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूशन है TQ3 वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, हायर एजुकेशन की तरफ से। और इस प्रोजेक्ट में हमने तकरीबन सभी लैब्स जो हमारे स्ट्रीम्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में BTech है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, IT इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें हमने बहुत सारी लैब्स को इस्टेब्लिश किया है और वो लैब्स ऐसी हो गई हैं अब कि IIT और NIT। J&K कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि असातिज़ा के देरीना मुतालबात को फौरी तौर पर हल किया जाए। JKCTA के सदर डॉक्टर राकेश जसरोटिया ने कहा कि वह हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कॉलेज के असातिज़ा के लिए भर्ती के नए कवानीन को नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि वह अपने मुतालबात के हक़ में 19 और 20 अगस्त को काम छोड़ हड़ताल करें। 19 और 20 तारीख को हमारे जो जितने भी जम्मू कश्मीर के कॉलेज हैं 19 और 20 को वो पेन डाउन स्ट्राइक रखेंगे और जो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो हम उसमें डिसाइड करेंगे। हमारी DPC हमारी नहीं हो रही है, हमारे DPC के लिए कभी कहीं से ऑब्जर्वेशन लगती है, हमारा डिपार्टमेंट करवाना चाहता है, कभी PSC मेंबर नहीं आता है, कभी उसमें ऑब्जर्वेशन लगती है, कोई हमारे फॉर्मर कमिश्नर है वो साइन नहीं। गंदम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एहलकारों ने पुलिस की मदद के बिना लकड़ी के 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। फॉरेस्ट वालों ने इन लोगों को हथकड़ियां पहना दी। उनके कब्जे से लकड़ी और मैकेनिकल कटर्स जब्त कर लिए गए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सरहदी इलाके मनुचली में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एहलकारों और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन किया। फॉरेस्ट एक्ट के तहत इस वाक़े पर एक केस गंदम में दर्ज कर लिया गया है। और रात को हमने लगभग कोई 11:30 बजे, ये हिमाचल की बाउंड्री है, 28 विलेज कंपार्टमेंट हमारा पड़ता है, वहाँ पे रात को जाके
जो मेरे फील्ड स्टाफ है इन्होंने रात को जाके ये कटर पकड़ा हुआ है और ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हमने स्मगलर्स जो हैं इनको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। बेथौली चली गंदू में निकासी आब के नाक़िस निज़ाम के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने कहा कि रिहायशी इलाके के बालाई हिस्से में ड्रेन सिस्टम काफ़ी ख़राब है। थोड़ी सी बारिश के बाद इस इलाके के रिहायशी मकानात में पानी घुस जाता है। लोगों की ज़रख़ेज़ ज़मीनें और फसलें इस गंदे पानी से ख़राब हो रही हैं। गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कई दरखास्तें हमने दी। ये वार्ड नंबर 6 और 3 जो है ये 1987 से जो है क्रैक हो चुका है, स्लाइड है और इस पर कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है। ड्रेन नहीं निकाली गई है। जो पानी है जब भी बारिश होती है तेज़ तो वो पानी इनके घरों में चला जाता है, इनकी ज़मीनें तबाह हो गई, फसलें बर्बाद हो गई। लिहाजा मेरी गुजारिश ये रहेगी कि फ़ौरन इस पर एक्शन किया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ज़िला गांदरबल के इलाके सोनामर्ग के टोल प्लाजा में CCTV नस्ब किए हैं ताकि वहां तैनात एहलकारों की मुनासिब कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। टोल प्लाजा में तैनात अहदेदारों की जानिब से गैर ज़रूरी हिरासा करने की शिकायत मिलने पर यह कदम उठाया गया। ये शिकायत करगिल और लद्दाख के लिए ज़रूरी सामान ले जाने वाले ड्राइवरों ने की है। शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार ने सोनामर्ग में इन ड्राइवरों से मुलाकात की। कमिश्नर के हमरा ARTO गांदरबल मौजूद थे। प्लाजा पे ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने यहाँ CCTV कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल्ड किए हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से भी शिकायत आ रही थी कि हमें अननेसेसरी हरास किया जाता है, कि यहाँ पे रोका जाता है, हमारी गाड़ियाँ ओवरवेट नहीं होती। तो वो जो है वो पूरा का पूरा CCTV कैमरा में कैप्चर हो जाएगा। और क्योंकि फ़ाइन काफ़ी हावी है, अगर आपकी गाड़ी में थोड़ा सा भी वज़न अपनी लिमिट से ज़्यादा है तो मिनिमम बेसिक फ़ाइन वो 20,000 रुपये है। तो इसी के कारण जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको फ़ाइन ना लगे, लेकिन जो MV एक्ट है उसके तहत जो प्रोविजंस हैं उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। पुंछ में चोरी के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी दुकान, मंडी, मस्जिद, गुरुद्वारा या ज़ियारत में चोरी की वारदात रूनुमा होती है। ताज़ा मामला कल रात डिग्री कॉलेज पुंछ के करीब पेश आया। 9:30 बजे जिनैनी गिफ्ट हाउस के ताले तोड़कर चोर वहां से हजारों रुपए का सामान ले उड़े। जानकारी देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। चोरी की बढ़ती वारदातों पर लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। मैंने उनको ये भी बोला कि रात को एक जगह सुनने में हो रहा है कहीं पावर हाउस में मंदिर है, वहाँ पर भी चोर गए। तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन और SSP पुलिस से ये अपील करता हूँ कि लगातार जो चोरियाँ हो रही है पुंछ में, इन पे जो चोर है उन पर लगाम लगाइए। बड़ी बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि चोरियाँ जो काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। कभी कहीं कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक नहीं चोरों ने छोड़े हैं। अब देखो जो गरीब इंसान है जिसने लोन लेके दुकान के वो अपनी दुकान डाली है, उसकी चोरी। पुंछ शहर और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ तूफानी हवाएं चलने से बड़े बड़े दरख्त गिर गए। नतीजे में पुंछ डिगवार और पुंछ डालान जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त 2-3 घंटों तक मुतासर होकर रह गई। लोगों ने अपनी मदद आप की बुनियाद पर सड़कों से रुकावटें हटाने के काम अंजाम दिए। दरख्तों को अपने हाथों से काट काट कर रास्ते से हटाया और गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल की गई। अब ये दिगवार की जो रोड है इस पर अभी आपने देखा कि थोड़ी सी कुछ जगह स्लाइडिंग हुई और पेड़ गिरे, उस वजह से रोड बंद हो गई। तो आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि हमने बड़ी बार इस रोड के बारे में उनके पास हम गए, अपने जो मुश्किलात हैं उनको लेके कि इस रोड को थोड़ा खुला किया जाए, ताकि ये जो जिस तरह का आके आपने देखा कि 3-3.5 घंटे लोगों ने बारिश में, बच्चों ने, बूढ़ों ने सफ़र किया। आज बड़ा मन दुखी हुआ। जिला पुंछ में कल शाम से लेकर आज सुबह तक होने वाली बारिश और तेज हवाओं से मकई की फसल को नुकसान पहुंचा। कोसालियां, डिगवार और अजूट में हजारों कनाल पर खड़ी फसलें सो गई हैं। फसलों की तबाही का तखमीना लगाकर मुआवजा फराहम करने की हुकूमत से मांग की जा रही है। महकमे ज़राअत के जिला अफसर का कहना है कि फील्ड स्टाफ को जायजा लेने के कामों पर लगा दिया गया है। नुकसान की तो हिसाब किताब लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 90% जो ख़ास करके मक्की की फसल है वो तो इस तूफान से वो बिल्कुल जो ज़मीन के ऊपर लेट गई है। उसके साथ तो दाना नहीं लगना, अभी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ किसानों का। हमने अपनी फील्ड एजेंसी को डायरेक्शन दी है, जब आप फील्ड पे जाओ रेवेन्यू के साथ मिलकर उसका पूरा सर्वे किया जाए, उसके बाद उसको रिपोर्ट सबमिट की जाए। हम हायर अथॉरिटी को लिखेंगे, गवर्नमेंट को लिखते हैं, उसको गवर्नमेंट से उसके मुआवजे की बात करेंगे। बाकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, मुआवजा उन पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे ही। बांडीपुरा में कोविड से बचाव के SOPs पर लोगों की जानिब से मुकम्मल तौर पर अमल न होने की शिकायत मिल रही हैं। जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने आज से
पूरे जिले में खुसूसी जानकारी मुहिम शुरू की है। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवीस ने कहा कि जुर्माने आयद करने या एफआईआर दर्ज करने से बेहतर यही है कि लोग खुद ज़ाब्तों पर अमल करें। अहमदपुरा पटन में ईद मुबाहला के मुक़द्दस दिन के मौके पर शिया एसोसिएशन के सदर मौलाना इमरान रजा अंसारी ने जामा मस्जिद का संग बुनियाद रखा। उनके हमरा साबिक़ MLA जड़ीबल आबिद अंसारी, डॉक्टर अमजद अब्बास अंसारी, इरफान अंसारी थे। लोगों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल तराल में आज एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। स्कूल में शजरकारी और सफाई मुहिम भी चलाई गई ताकि 15 अगस्त की तकरीब स्कूल में एहसन तरीके से मनाई जा सके। ये मकसद ये एक्चुअली एक नेशनलाइज प्रोग्राम एक है जो इस स्टेट में भी मनाया जा रहा है। इसके लिए हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि ये मनाना है। एक पखवाड़ा है, ये सफाई अभियान है, और दूसरा है प्लांटेशन। इसमें हर एक इंस्टीट्यूशन को कम से कम 20 प्लांट्स लगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में साइकिल रैली और पदयात्रा का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी DDC विकास शर्मा ने झंडी दिखाकर रैलियां रवाना की। स्कूली लड़के और लड़कियां साइकिल रैली में शामिल रहे। मिनी सेक्रेटेरिएट डोडा से होते हुए यह साइकिल रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा है। अब आज यहाँ पे साइकिलिंग रेस हुई थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे हमें एक्सपीरियंस हो सकता है और हम आगे जाके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साइकिल रेसिंग। मैंने आज मैंने साइकिल रेसिंग में पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हम फिट रह सकते हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक वॉलीबॉल का कंपटीशन हो रहा है इंडिपेंडेंस डे के लिए, जो उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे विनर हो जाएंगे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। 15 सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल के करीब नाला वातल आरा पर बनाया गया आरजी पुल बह गया है। इसकी वजह से तराल के कई इलाकों का राब्ता कस्बे से मुनक़ता हो गया। लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने अपने खर्च से नाले पर आरजी पुल तामीर किए थे, ताहम नाले में दोगयानी आने की वजह से अभी तक कई पुल पानी की नज़र हो चुके हैं। इस हवाले से महकमे R&B के एक अफसर ने बताया कि पुल के लिए उन्होंने DPR भेज दिया है। जबरदस्त प्रॉब्लम गसन सोन बच्चे छन हेकन योर तरित बेई छो यम सात कहाँ डिलीवरी केस आस यत यमन गामन यम यपरी नेरन तिमन प्रॉब्लम गसन तिम छन हेकन योर तरित कहीं। 5-6 सालों से गवर्नमेंट से हमने अपील की है इस पुल के बारे में, लेकिन बार बार वो बोल रहे हैं कि हमने DPR भेजा है। हमने JE साहब से कंसर्न किया है, मतलब AEE है। D से एक बार मतलब DC का PA आया था यहाँ, उनने बोला कि हम बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे किसी किस्म का असर नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं गवर्नमेंट सो रही है। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया ताकि मरीजों को फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात का जायजा और कोविड प्रोटोकॉल के निफाज का जायजा लिया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की और उन्हें सेहत स्कीम के बारे में आगाह किया। जिला इंतजामिया और आम लोगों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सरहदी बाशिंदों की बुनियादी शिकायत को सुनने के लिए DC सांबा अनुराधा गुप्ता ने सरहदी गांव चकदुलमा में एक मीटिंग तलब की। सरपंच और पंच आम लोगों मौजूद थे। उन्होंने अपने मसाइल से वाकिफ कराया। DC ने मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफसरान को लोगों के साथ ताउन करने की हिदायत दी। सेंट्रल कश्मीर के ज़िला बडगाम में बहुत सी सड़कें खस्ता हाल हैं। नसरुल्लाहपुर के करीब बेरवा बडगाम रोड भी जगह जगह से ख़राब है। लोगों का कहना है कि कई बार दरख्वास्त के बावजूद इंतज़ामिया ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। लोगों ने LG से मामले में मुदाखलत की अपील की ताकि सड़क का काम जल्द शुरू हो सके। मुश्किल पड़ता है यहाँ पे, मतलब यहाँ की गाड़ी नहीं चल रही। यहाँ की बहुत रास्ते पहले से 2 साल पहले ऐसे ही है। यहाँ टिपर ज़्यादा चलता है ना, इसी वजह से ये रास्ता सीधा नहीं रहता है। एक दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत मुश्किलात होती है। ये बीरवा रोड है, बडगाम तो बीरवा जाती है ये रोड। एरिया बोड़ मगर तुम वो पान त मुश्किल जन तम ट्रेंच गम तम आब ग्रैंड कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर गुल गंडित वन तुम मेहरबानी कर ये चंल कि वसालत सत रोडस कर तो मुश्किल हल क्या दिक्कत ग। शोपियां के जमपथरी से वुशु किला तक 4 किलोमीटर सड़क की हालत खस्ता है। लोगों को कई मसाइल का सामना है। इस सड़क को देखकर हुकूमत की जानिब से तरक्की के सभी नारे खोखले नजर आते हैं। लोगों ने UT और जिला इंतजामिया से सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है।
सड़क की यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमने यहाँ 2-4 साल पहले हमने 2,000 रुपये फ्री घर ने निकाले और हमने थोड़ा रास्ता निकाला था। उसके बाद नरेगा वालों ने थोड़े पत्थर डाले इसमें। उसके बाद आज 4 साल हो गए, ना इधर कोई आता है ना कुछ। गवर्नमेंट दावा करती है कि हम घर घर तक सड़क पहुँचाएँगे। लगभग ये 4-5 किलोमीटर दूर है। इसमें 200-250 चूल्हे बस्ती है यहाँ से। मुश्किल लोग का निका बच्चा करेंगे, सड़क नहीं, चलन का राह नहीं, कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप? गांधरबल में कुजीर गांव समेत आसपास के दीगर 5 गांव के लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। हालांकि महकमा जल शक्ति ने बरसों पहले यहां जखीरा आब तामीर किया था, लेकिन इसे गैर कारगर छोड़ दिया गया। गुजरते वक्त के साथ ये जखीरा आब खस्ताहाल हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि जखीरा आब गैर महफूज है और इंसानी जानों के लिए खतरा बना हुआ है। लोगों के मुताबिक बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद महकमा जल शक्ति इस मामले में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। जिला सांबा में गवर्नमेंट इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर के गेट के पास ड्रेन सिस्टम खराब हो गया। नतीजे में अस्पताल के गेट के पास बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा हो रहा है। अस्पताल में आने जाने वालों और मरीजों को बड़ी ही मुश्किल का सामना है। ईओ म्यूनिसिपल कमेटी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अलावा जिला इंतजामिया के साथ भी ये मसला उठाया है। जिला भुज के मेंढर सब डिवीजन के मरकज मेंढर कस्बा में पिछले 4 सालों में बनाए जाने वाले बाईपास पुल का काम आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोग भारी ट्रैफिक से तंग आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि फंड जारी नहीं होने की वजह से पुल का काम रुका हुआ है। वहीं PWD के अफसरान ने ऑफ द कैमरा बताया कि जल्द ही पुल का तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। जो इसलिए बनाया गया था कि जो मेंढर टाउन में इतना बिजी स्ट्रीट है मेंढर टाउन कि 3 तहसीलें, एक सब डिवीज़न है ये मेंढर, 3 तहसीलें बालाकोट है, मेंढर है और मनकोट है। 3 तहसीलों पे ये मेन डिवीज़न है जहाँ पे SDM बैठते हैं, तहसीलदार मेंढर हेडक्वार्टर बैठता है और SDPO बैठता है। लोगों को काम होता है, यहाँ जजेस बैठते हैं। काम लगता है तो घंटे घंटे लग जाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं बच्चों को या स्कूल के।